In this video, we will talk about freelancing and I'll answer the most searched questions on Google. What is freelancing? A person who is self-employed to work for different individuals on a particular project. अगर हम इसको सादी सी ज़बान में एक्सप्लेन करें तो जैसे प्राइवेट जॉब में होता है आप कभी कभार या अक्सर लेज़नेस दिखा के तब भी पैसे कमा लेते हैं, आपको पे मिल रही होती है आपको मन पे। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम ना करके भी पैसे कमा लेते हैं, तो यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, प्रोजेक्ट नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड फ्रीलांसिंग। इन जॉब यू हैव ओनली वन बॉस, इन फ्रीलांसिंग यू हैव मल्टीपल बॉस। जैसे जॉब में होता है आपका एक प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, बस उनको आंसरेबल होंगे, अब चाहिए प्रोग्रेस हो रही है, ये काम हो रहा है, ये डेडलाइन से, ये टारगेट्स हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग में आपके जितने क्लाइंट्स हैं सब आपके बॉसेस होते हैं। What skills you should learn in 2020? The skills you should learn completely depends on your interest. Okay, if you don't have any interest but you want to make money and to become independent, an individual can easily master in a new skill in 3 months. The skills which are in demand these days, you can provide video and animation services like logo animation, intros and outros. So editing is high in demand. You can learn Adobe Premiere Pro or Final Cut Pro or iMovie software to base. You can learn all these video editing software from YouTube or any other tutorial website. Photo editing is also high in demand these days. You can learn Adobe Photoshop from YouTube. Everything is available on the internet. You just need to search the services you can provide like photo editing, photo manipulation, photo retouching, background or object removal. You can provide graphic services like logo designing, poster designing, animation, web mobile app UI design. You can design invitation cards. You can also provide gaming coaching service like if you know how to play PUBG, Fortnite or GTA. Already a lot of people are doing this and making hundreds of dollars each month by playing game. You can also become a UI UX designer. For that you need to learn Adobe XD tool. You can also learn Figma and InVision. There are a lot of tools available in the market. You just need to start searching. You can also provide a digital marketing services like managing someone Facebook page, Instagram. You can also provide the content creating services for websites, blog writing, content writing, story writing, podcast writing. And if you are a good teacher, you can also provide the online teaching service. You can provide the app testing, chatbot, and database related services. You can also do the data entry tasks like if you know how to work on MS Word or MS Excel. You can also provide the web, mobile, एंड गेम डेवलपमेंट सर्विसेज। जो स्किल डिमांड में है 2020 में, आप इसमें वीडियो एडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आपको Adobe Premiere Pro विंडोज़ यूज़र्स के लिए आप सीख सकते हैं, या अगर आप मैक पे हैं तो आई मूवी हो गया या फाइनल कट प्रो हो गया, वो आप सीख सकते हैं। बेसिक कटिंग कैसे करते हैं वीडियो क्लिप्स की, जॉइन कैसे करते हैं वीडियो क्लिप्स की, बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं म्यूजिक, एंड इस तरह आप ये बेसिक स्किल सीख सकते हैं। और वीडियो एडिटिंग वैसे भी हाई डिमांड है, फोटो एडिटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉप फोटोशॉप सीखना पड़ेगा, बैकग्राउंड रिमूवल कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट रिमूवल कैसे करते हैं, इस टूल को इस्तेमाल कैसे करते हैं, फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। अगर आपको गेमिंग आती है आप इसकी कोचिंग क्लासेस दे सकते हैं, जैसे कैसे पबजी को खेला जाए या कैसे फोर्टनाइट खेली जाए या जीटीए होगी या कॉड होगी, कोई भी गेम होगी अगर आपको खेलनी आती है आप उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। हज़ारों लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हर मंथ हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स बना रही हैं। अगर आप इसके अलावा आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों की वेबसाइट को प्रमोट करवाना या उनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स प्रमोट कराना, या यूट्यूब चैनल्स हो गए, या किसी के फेसबुक पेज को मैनेज कर आप मोबाइल ऐप टेस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे लोगों की ऐप डाउनलोड करके उनको बताना कि ये सजेस्ट करना है, यार ये बग है, ये बग है, ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ये चैटबॉट बना के दे सकते हैं। इसके अलावा आप डेटाबेस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एसक्यूएल क्यूरी की, या अगर आपको एम एस वर्ड आते हैं, एम एस एक्सेल आते हैं, आप घर बैठकर लोगों की असाइनमेंट्स कर सकते हैं, क्विज़ेस कर सकते हैं उनके, एंड इसी तरह आप बाकी सर्विसेज दे सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स पे असाइनमेंट्स करना या लोगों को क्विज़ करना अलाउ नहीं है। इन केस आप फेसबुक ग्रुप्स पे या बाकी व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा आप समझते हैं कि आपको डेवलपमेंट का शौक है, तो आप वेब डेवलपमेंट होगी या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होगी या गेम डेवलपमेंट होगी, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप वेब में जाते हैं तो आजकल का फ्रेमवर्क Vue.js है, वो सीख सकते हैं। मोबाइल ऐप में अगर आप हैं तो आप फ्लटर सीख लें या रिएक्ट नेटिव सीख लें, क्योंकि उसमें आप iOS एंड्रॉयड के लिए एक ही ऐप बना सकते हैं, एक ही कोड लिखा जाता है उस पर। गेम डेवलपमेंट में आप यूनिटी 3D सीख सकते हैं या अनरियल इंजन सीख सकते हैं, नए अकाउंट को मैनेज करना या इंस्टाग्राम अकाउंट्स को मैनेज करना। इसके अलावा आप ब्लॉग राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, लोगों को स्क्रिप्ट्स लिख के दे सकते हैं। How to get your very first project? I would recommend whenever you learn any new skill through some tutorials,
Always make a project at the end. For example, you have learned coding basic concepts, apply them and make a project out of your learning concept and add that project in your portfolio. You have learned video, you know how to do basic editing, joining, mixing and grading. Just download a sample video from the internet and do your magic. Whatever you have learned, apply that and add that project in your portfolio. Simply you are a mobile developer, अप्लाई और लर्निंग कॉन्सेप्ट्स एंड मेक सिंपल ऐप। सवाल ये होता है कि कहाँ से स्किल सीखें, इसका बड़ा आसान सा हल है। गूगल ओपन करें, वहाँ पे लिखें लर्न स्किल नेम, लर्न एडोब फोटोशॉप। जैसे आपको हर मूवी मिल जाती है ना, इसी तरह आपको स्किल का कोर्स भी मिल जाएगा आराम से। बस आपने लिखने है लर्न और आगे स्किल का नाम। इसके अलावा हज़ारों अच्छी वेबसाइट्स हैं, यूडेस्टी के, यूडेमी है, ईडीएक्स की वेबसाइट है। उसके अलावा खान अकेडमी है, कोड अकेडमी है, हज़ारों वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप स्किल सीख सकते हैं। कोई भी काम करें, अपना एक पोर्टफोलियो बना लें। जब भी आपको बस कोई क्लाइंट अप्रोच करे, आप उसको वो पोर्टफोलियो शेयर कर दें कि यार ये मेरा पोर्टफोलियो देख लो, मेरा पुराना काम। पोर्टफोलियो हमेशा मदद करता है आपको पहला प्रोजेक्ट लेने में। Platforms available for freelancers like Upwork, Fiverr, People Per Hour, Freelancer.pk. You can also get projects from Facebook and WhatsApp groups. Which payment methods are available for freelancers in Pakistan? You can simply use Pioneer to get your national and international payments. If you have a debit card, then it's fine. You can connect your Pioneer with your debit card and can get your payments directly into your bank account. Even if you don't have a debit card, you can simply connect your Pioneer card to your Jazz Cash if you are in Pakistan, or otherwise you can get PayPal or some other methods. Usually the per transaction charges are $3. Whenever you start working on some freelance platforms like Fiverr, Upwork or People Per Hour, always make sure to follow their terms of service. You should never share your WhatsApp number or mobile number. You should never share your email. Never discriminate on any platform, otherwise they'll immediately ban you. नेवर क्रिएट मल्टीपल और फेक आईडी। इसके अलावा एक और मसला है, लोग कहते हैं कि यार ठीक है पैसे भी बना लिए फाइवर पे, हम जॉब वर्क पे बना लिए हमने पैसे, अब वो पैसे पाकिस्तान कैसे लाएं? मेरा तो बैंक कार्ड नहीं है, डेबिट कार्ड नहीं बना हुआ, मैं 18 साल का नहीं हूँ, या मेरे मैं जॉब नहीं करता कोई भी, या मेरे पास पे स्लिप नहीं है इस वजह से, तो मैं कैसे अकाउंट खुलवा सकता हूँ? तो आपको पैसे पाकिस्तान लाने के लिए या पैसे अपने जेब तक लाने के लिए किसी भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली पायनियर पे जब साइन अप होते हैं, उसके साथ अपवर्क अटैच होता है, फाइवर अटैच होता है, हर प्लेटफॉर्म अटैच हो जाता है पायनियर के साथ। अपने पायनियर को, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तब अच्छी बात है, आप बैंक अकाउंट अटैच कर लें अपना पायनियर के साथ और वो पेमेंट पायनियर से आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अगर आपके पास बैंक कार्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप पायनियर के साथ जैज़ कैश अटैच कर सकते हैं और पायनियर से जैज़ कैश पेमेंट हो जाती है। जैज़ कैश हर बंदा खुलवा सकता है, इसके लिए उम्र की कोई हद नहीं है। और पायनियर यूजली $3 पर ट्रांजेक्शन चार्ज करते हैं, और अक्सर जैज़ कैश की ऑफर्स चल रही होती हैं, वो फ्री कर देती हैं ट्रांजेक्शन्स। तो दो बड़े बेसिक से मेथड्स हैं कि कैसे आप अपनी अर्निंग्स पाकिस्तान ला सकते हैं। तो एक तो ये है कि अगर आपके पास बैंक कार्ड है, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, तो आप पायनियर को अपने डेबिट कार्ड के साथ अटैच कर सकते हैं, जिससे आप पेमेंट्स अपनी डायरेक्ट उस प्लेटफॉर्म से पायनियर में आती है, एंड पायनियर से आपकी पेमेंट बैंक कार्ड में आ जाती है, आपके एटीएम बैंक अकाउंट में आती है। अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप पायनियर को अपने जैज़ कैश के साथ अटैच कर सकते हैं, एंड देन पेमेंट आपकी डायरेक्ट जैज़ कैश में आ जाएगी। इसके अलावा लोग कहते हैं कि क्या काम नहीं करने चाहिए फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, दूसरों की गलतियों से सीखें और वो काम ना करें। जैसे कभी अपना मोबाइल नंबर ना शेयर करें, या व्हाट्सएप ना शेयर करें, या ईमेल ना शेयर करें फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे, अदरवाइज वो बैन कर देंगे आपको। कभी किसी को गाली गलौज ना करें। इसके अलावा फाइवर वाले हो गए, कुछ हो गए पीपल पर और पे भी, लेकिन मेन फोकस फाइवर है इस पे। वहाँ पे आप हमेशा रिवीन्स के लिए तैयार हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया ना, तब भी रिवीन्स करनी है आपने। इसकी मेन वजह ये है कि अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है आपने। अदरवाइज अगर क्लाइंट ने आपकी कंप्लेन कर दी तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गई होगा, आपके पैसे अकाउंट से निकल भी जाएंगे वापस, और आप अपना काम भी लूज़ करेंगे और पैसे तो वैसे ही लूज़ करेंगे, और रेटिंग तो ख़राब होगी होगी। तो हमेशा रिवीन्स के लिए तैयार हैं। व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग? You take projects from the clients and you give it to someone else to complete them, and you keep commission on। आउटसोर्सिंग का भी बड़ा आसान तरीका है। अगर अक्सर लोग कहते हैं कि यार आउटसोर्सिंग कैसे करें, या आउटसोर्सिंग क्या होता है, तो इसमें ये होता है अगर आपका कोई स्किल भी नहीं है ना, तो मैनेजमेंट का स्किल थोड़ा आना चाहिए। आप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट लेते हैं, वेबसाइट बनाने का लेते हैं, एडिटिंग का लेते हैं, आप किसी बंदे को जानते हैं जो वो बना सकता है,
फॉर एग्जांपल 10,000 का वो प्रोजेक्ट मिला आपको, आपने आगे 4-5 हज़ार दे दिए, 6,000 खुद रख लिए या 5-6 हज़ार खुद रख लिए। फॉर एग्जांपल काम ज़्यादा है तो कोशिश करें कि 80-20 कर लें, 8,000 अगले को दे दें, 2,000 खुद रख लें, डिपेंड करता है। तो ये आउटसोर्सिंग होती है।